تقریباً مہینہ ہو گیا ہے سر، ایگل اپنے سارے کام مکمل ذمہ داری اور بغیر ہیرا پھیری کے کر رہا ہے، جبکہ چھوٹے صاحب نے ایک بار پیسہ چوری کا کہہ دیا اور دوسری بار پارٹی تک مال ہی نہیں پہنچا۔ یہ آخری چانس تھا چھوٹے صاحب کا، مگر پارٹی نے کہا ہے کہ جو مال اسے ڈیلیور کیا ہے اس میں ہیروئن نہیں بلکہ چینی کا پاؤڈر ہے۔ اب بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ڈیک نے اسٹڈی میں موجود منہاج اضحاک سے کہا، جو اضطرابی انداز میں اوپر آپریٹر چیئر کو گھما رہا تھا۔ اس کی بات پر اپنے عمل کو ترک کیے اسٹڈی ٹیبل پر بازو ٹکا دیے۔ چھوٹے صاحب کو موت کا مزہ چکھانا ہے اور کیا، ایم آز نے سرد لہجے میں کہا، مگر وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ مال میں یہ تبدیلی کس نے کی۔ ڈیک کو منہاج سے اتنی سخت سزا کی امید نہیں تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا؟ چھوٹے صاحب نے اس سے الجھتے ہوئے کہا، کیا ثبوت ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے؟ ایم آز نے کڑے تیوروں سے گھوری دی۔ وہ شٹ اپ، دماغ خراب مت کرو میرا۔ شام میں چھوٹے صاحب کی زندگی کا چراغ بجھاتا ہوں میں۔ مجھے نفرت ہے دھوکے سے، فریب سے۔ وہ دانت پیس کر گویا ہوا، پھر اچانک چیئر سے اٹھا اور ایک زوردار مکہ میز پر موجود شیشے کی سطح پر رسید کیا۔ وہ لمحہ ہی کتنا مذاق اڑاتا ہنستا ہوا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کو بے وقوف بنا گیا، دھوکہ دے گیا۔ منہاج اضحاک فریب کھا گیا۔ نفرت، شدید نفرت ہے مجھے اس جملے سے۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے دھوکہ دینے والوں سے، فریب کھانے والوں سے۔ مجھے نفرت ہے خود سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ہر شے زمین بوس کیے جا رہا تھا۔ سارے شو پیس، پین، مارکرز، کتابیں، شیلف، ہر چیز کو مار مار کر اپنا ہاتھ میں ہولہان کر چکا تھا۔ آخر میں اس کو پانی سے بھرا شیشے کا گلاس نظر آیا۔ اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پورے زور سے شیشہ توڑ دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر کچی کچی ہو گیا، کچھ قالین کے فرش پر گر گیا تو کچھ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ گلاس میں موجود پانی بھی چھلک کر قالین پر بہہ گیا تھا۔ ڈیک نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کئی بار ایم آز کی یہ حالت دیکھ چکا تھا۔ یہ انسان تھا ہی نہیں، بھیڑیا، درندہ۔ کیا تھا یہ شخص جسے نہ خود سے محبت تھی نہ کسی اور سے، جسے بس دنیا تباہ کرنی تھی، جو دوسروں کی آہیں سننے کو خود بھی تڑپتا تھا، جو خود جل رہا تھا، دوسروں کو بھی جلا رہا تھا۔ میں بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ نہ جانے کیا ضد بن گئی تھی دونوں میں۔ نیلم دن رات چھت کے چکر کاٹتی، دیوار کے پار جھانکتی رہتی کہ شاید وہ دکھ جائے یا ایک جھلک، کوئی پرچھائی، مگر وہ تو گدھے کے سر پر سینگ کی مثال کے مصداق منظر سے مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ خود انجان تھی کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ وہ اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ اسے کبھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑے تھے، وہ ہمیشہ سراہی جاتی تھی۔ تعریف ہمیشہ اس کی ہوتی۔ حسن پرستی کے اس دور میں وہ کسی بھی محفل کے بغیر کسی تگ و دو کے جان بن جاتی۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی ہوتی، تو کبھی رشک، کبھی حسد ہوتا۔ مگر ٹائیگر، وہ بہت مختلف تھا۔ وہ اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ کم از کم اس کی 18 سالہ زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کی حسن کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اونچی آواز پر اسے سنا دی تھی، وہ جو اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر راہ چلتی لوگوں کی ذرا سی بات پر ان کو جھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ وہ اسے کیسے چپ کرا گیا تھا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے آگے جھکتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تفاخر اس کے اندر بچپن سے سر اٹھا چکا تھا، جس کی وجہ صرف حسین ہونا تھی۔ آج وہ مرکت کا موازہ اس سے کرنے لگی، اور کچھ نہیں تو اسے یہ خصوصیت ضرور نظر آئی تھی کہ وہ سخت دل تھا، ورنہ بارش کے موسم میں جو پیغام اس کی آنکھیں اسے دے رہی تھیں وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ کیسے وہ اسے نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ دادو پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میرے پریملرز شروع ہونے والے ہیں، مجھے پڑھنے دیں۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ دادو نے اسے کھولنے کا کہا تو وہ بلا وجہ ہی چڑ گئی۔ گڑیا دیکھنا ذرا کون ہے، میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ سائیکا کچن سے چلائی۔ ڈرائنگ روم میں نوٹس کو لے بیٹھی نیلم پیر پٹکتی دروازہ کھولنے چلتی تھی۔ کون ہے؟ صبر نہیں ہے؟ توڑ دو دروازہ، جذباتی انسان۔ وہ تیز تیز بولتی بغیر پوچھے دروازہ کھول گئی۔ کس کو جذباتی بول رہے ہیں ہم؟ فیلنگ لیس۔ ٹائیگر کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر جہاں آنکھیں سیراب ہوئی تھی وہیں شکوہ بھی زبان پر آ گیا۔ دادو سے بات کرنی تھی مجھے۔ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر گیا۔ مجھ سے ہی بات کر لیں، میں بھی دادو کی ہی پوتی ہوں۔ نیلم نے اس کا راستہ روک رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے دروازے کو بھی تھام رکھا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے شوخ لہجے پر دانت پیسے۔ راستہ چھوڑیں، وہ چڑ کر بولا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ وہ چیلنج کرنے لگی۔ ڈارک گرے شرٹ اور براؤن جینس میں موجود ٹائیگر آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا دونوں میں۔ نیلم کی سانس رک گئی تھی، دروازے کی پٹ پر گرفت ڈھیلی ہو گئی، آنکھیں مقابل کے سحرزدہ شخصیت کی اسیر ہوتی فریز ہو چکی تھیں۔ مقابل کے سرد نگاہیں اس کے سبز کانچ میں گڑ گئیں۔ میں اپنے راستے صاف کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر جا چکا تھا۔ پل بھر کا کھیل تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر جتنا شرمندہ ہوتی اتنا کم تھا۔
हिसार टूट गया। वो बेबस खड़ी थी, वो हार गई, वो फातेह ठहरा। अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई थी, वो तो मैदान में भी नहीं उतरी थी कि पहले ही हार गई थी, मात खा गई थी। वो तो उसके मुकाबले आते ही जज्बात की उस नगरी में पहुंच जाती जहां अकल का सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। उसका दिल अचानक भरा गया, हर चीज़ बेमायनी लगने लगी, बेजारियत तारी होने लगी। वो भागती हुई ड्राइंग रूम के आगे से गुजरती ऊपर चली गई। बिस्तर पर औंधे मुंह लेट कर जाने क्यों वो अफसुर्दा सी हो गई थी। मुझको समझाया ना करो कि अब तो हो चुकी मुझको, मोहब्बत मशवरा होती तो तुमसे पूछ कर करते। मम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सब घबराहट, खौफ और दहशत के मारे उससे कुछ बोला ना गया। एम आर्स प्लाजा के बेसमेंट में मौत का सा अंधेरा छाया हुआ था। दहशत तो इस जगह को देख कर ही तारी हो जाती थी। उस पर मिनहाज इजहा का वहां पर मौजूद होना, वो भी मौत की खबर के साथ। ऐसे में तो मौत बंदा मर जाए। मैंने तुमसे सफाई मांगी, एम आर्स ने तीखे तेवर लिए कहा। छोटे साहब सूजे मुंह के साथ बाएं करवट पर पड़ा था 2 दिन का भूखा प्यासा। उस पर बार बार प्रेशर से पानी छोड़ा जाता। वो तो हकीकी मानों में अक्लो खिरत से बेगाना हो रहा था। हाथ जोड़े बेबस पड़ा था, टांगे मुड़ चुकी थी, पैर अकड़े पड़े थे। अगर कोई इंसान उसे इस हालत में देख लेता तो कलेजा मुंह को आ जाता। उसकी जुबान तक बाहर को लटकी हुई थी। एक सुनहरी माइल बल्ब की रोशनी में लकड़ी की कुर्सी पर वो यूनानी देवता सा वजी शख्स उसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुराने लगा। इतना ही डर था मौत का तो मेरी जान क्यों धोखा दिया मुझे, हाँ? वो शीरीन लहजे में ऐसे पूछ रहा था जैसे डिनर का मेन्यू पूछ रहा हो। पता है तुम्हें मुझे कितनी नफरत है धोखा देने वालों से और फरेब खाने वालों से। वो धीरे धीरे चलता उसके बेबस वजूद से कुछ फासले पर ठहर गया, फिर उसके पास एक घुटना मोड़कर जमीन पर टिकाया और दूसरा खड़ा किए बैठ गया। छोटे साहब के मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं, जिस्म कांप रहा था, आंखें सूरज के बाहर को उबल रही थीं। देखो, मैंने फरेब खाया तो उसकी सजा खुद को दे दी, उसने सफेद पट्टी बंधा हाथ आगे करते कहा। अब तुम्हारी बारी है, सजा की बारी है। उसका लहजा बदल चुका था। उसने पिस्टल छोटे साहब के मुंह में घुसेड़ दी। उसकी आंखें इल्तिजा कर रही थीं, बह रही थीं। वो हाथ जोड़े हुए था, मगर मुकाबिल इंसान होता तो रहम करता। उसके पास दिल होता तो एहसास जागता। उसने माफ़ करना सीखा होता तो माफ़ करता। वो दरिंदगी की इंतहाओं को छू गया। पूरा मैगजीन छोटे साहब के मुंह में ही खाली कर देने के बाद भी जब उसको सुकून आया तो उसका चेहरा अपने मजबूत बूट से कुचल दिया। सीने पर 2-3 बार इसी तरह बूट की नोक मारी और एक जोरदार ठोकर रसीद करता अंधेरे में गुम हो गया। गुड़िया, कब से बुला रही हैं दादो नीचे, क्यों नहीं आ रही? साइका ने उसके हाथ से रियाजी की किताब झपट कर हल्की सी भरहमी से पूछा। अब भी हमारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, प्लीज तंग मत करें। वो बेजारी से बोली। बहुत बुरी बात है गुड़िया, आहिल ये एमन और ईशा को लेकर आया है। तुम्हारी हम उम्र है, जाओ गपशप करो, भला घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसा रवैया रखता है? साइका ने उसे नेट का काला दुपट्टा थमाया जिसके किनारों पर बहुत से रंगों की मिली जुली लेस लगी थी। इशारा उसके नीचे आने की तरफ था। आपी, नीलम ने एहतजाज किया, मगर वो उसे कलाई से थामे नीचे ले आई जहां ड्राइंग रूम से खुश गपियों की आवाजें आ रही थीं। माशाअल्लाह, भाई को तो अब गाड़ी भी मिल गई है और जल्द ही घर भी मिल जाएगा। रियान भाई को भी आहिल भाई ने कार लेकर दी है, मगर कोरोला नहीं, ईशा चहकते हुए बता रही थी। अल्लाह तरक्की दे, बरकत डाले। दादो ने पास तख्त पर बैठी ईशा को साथ लिपटाते माथे पर बोसा दिया। गुड़िया, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? आहिल, जो उनकी बातों पर फीके से मुस्कुरा रहा था, काले रंग की शॉर्ट शर्ट और खुले ट्राउजर में बेजार सी नीलम को देखकर जैसे खिल उठा था। होंठों की तराश में मुस्कुराहट मचली थी। ज़ाहिर है मेरा घर है, आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मुझे बैठने के लिए। उसे इस वक्त खुश शक्ल आहिल की सूरत दुनिया के तमाम मर्दों में सबसे बुरी लगी थी। अरे गुड़िया, गुस्सा क्यों हो रही हो? ईशा और एमन के सामने उसे कुछ सुबकी महसूस हुई, मगर फिर भी बशाशत भरे लहजे में कह रहा था। हाँ, दादो और साइका के सामने नीलम से ये इज्जत अफजाई उसकी कई बार हो चुकी थी। मेरा दिमाग खराब है जो बिला वजह गुस्सा करूंगी, वो तब कर बोली। हुस्न की तो बात ही निराली थी, उसकी ये बदतमीजी भी आहिल को अदा ही लगी। गुड़िया देखो, आहिल भाई ने मुझे और एमन को गोल्ड के टॉप्स लेकर दिए हैं, तुम्हारे लिए भी लाए हैं। ईशा, जो बचपन से नीलम से इम्प्रेस थी, झट उसका मूड ठीक करने लगी। हाय, कितने अच्छे हैं, क्या जरूरत थी इस नकचड़ी पर इतने पैसे उड़ाने की? दादो ईशा से टॉप्स पकड़कर देखती हुई बोली। जा पहले चाय बना ला, बहन कब की लगी है, मदद कर उसकी, बाद में देख लेना। दादो ने टॉप्स तख्त पर पड़े अपने डिब्बे में डाल दिए। आहिल और बाकी तीनों ने मुस्कुराहट जब्त की। नीलम ने तीनों को घूरा और बाहर निकल गई। कैसा लगा गिफ्ट? साइका ने चाय बनाती नीलम से हंसते हुए पूछा। उसने दांत पीसकर बहन को घूरा। अच्छा, चाय निकाल कर ले आओ, मैं समोसे ले जा रही हूँ। साइका मुस्कुराहट दबाती किचन से निकल गई। उसके निकलते ही आहिल ने दबे पैर किचन से कदम रखा। काला सूट भी कभी किसी किसी पर जचता है, और जिस पर जचता है वल्लाह कमाल जचता है। शेर पड़ने की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा।
وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیے کو ہاتھ میں پکڑا پین لرز کر رہ گیا۔ آپ اندر جائیں، ہم چائے لا رہے ہیں۔ پورے جسم کا خون اب اس کے چہرے پر جھلکنے لگا تھا۔ ہم تو آپ کی مدد کو آئے ہیں، آہل شریر لہجے میں کہتا چند قدم آگے بڑھا۔ آہل بھائی، ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جائیں۔ وہ ناگواری سے بولی، آپ تو جو رنگ پہننے لگتا ہے آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ آہل پٹڑی سے اتر چکا تھا، ضبط کے باوجود بھی اس کی رنگت دمکنے لگی۔ وہ پزل ہو رہی تھی اس کے فسوں خیز لہجے سے۔ نیلم چائے لے آ۔ دادو کی آواز آنے پر آہل باہر نکل گیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ بدتمیز جاہل انسان، جتنی مرضی سنا دیں اسے مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ نیلم نے کلس کر سوچا۔ وہ میٹرک کے بعد سے ہی آہل کی توجہ اپنی جانب محسوس کر چکی تھی۔ بات ہمیشہ چائے سے شروع ہوتی، اب تو نیلم کو عادت ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا اسی سے ہی چائے بنوا کر پیتا۔ پھر نیلم کی کمزوریاں مثلاً چھپکلی، لال بیگ اور دیگر کیڑے مکوڑے لا کر اسے ڈراتا اور بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ دوسری جانب نیلم کے لیے آہل ایک عام سا انسان تھا۔ اس کی نظر میں آہل کے اندر کوئی بھی ایسی خصوصیت نہیں تھی جو وہ اپنے ہمسفر، ہمدم اور ہمراہی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں مرد لفظ ہی ایک مضبوط اور طاقتور شے کا خاکہ بننے لگ جاتا تھا۔ مرد مطلب نڈر، بے خوف۔ آہل نے اس کی سوچ کو سائیکا کے ذریعے جانتے ہوئے آرمی میں شمولیت کا سوچا، مگر وہاں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تبھی وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا، لیکن وہ کمزور اور بزدل تھا اور اسے ایسا ہی رہنا تھا۔ عادت بدل جائے، فطرت نہیں بدلتی۔ سرسبز لان میں ہر طرف پھولوں کی کیاریاں بنی تھیں۔ ہوا کے دوش پر لہراتے پھول فضا میں خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ملازم کی رہنمائی میں وہ پلازا کے اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کتنی منزلیں تھیں اس پلازا کی۔ نظر اٹھا کر دیکھنے پر اس کے گر جانے کا خوف آنے لگتا۔ زیادہ تر دروازے کھڑکیوں پر شیشے کی سلائڈز لگی تھیں۔ راہداری کے بعد لفٹ سے وہ تیسری منزل پر پہنچے، جہاں کوریڈور سے گزرنے پر اسے ایک کشادہ ڈرائنگ روم تھا۔ سامنے ہی منہاج اضحاک ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر ٹکائے انگلیوں کو ہلاتا کچھ گنگنا رہا تھا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ خود ہی سن پاتا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے ہر انداز سے مغروریت کا ثبوت ملتا تھا۔ پاس کھڑے ڈیک نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ویلکم، موسٹ ویلکم، اے ایس پی آہل اسرار، ایم آز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کار پسند آئی تمہیں؟ اس نے یوں دریافت کیا جیسے چھوٹے بھائی کو سالگرہ کا تحفہ دیا ہو۔ جی، آہل نے ادب سے کہا۔ دیٹس گڈ، کم اینڈ سٹ ہیئر۔ اس نے آہل کو اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری زیادہ تر ڈیلنگ بلوچستان میں موجود تاجروں سے ہوتی ہے اور اس میں زیادہ تر سعودیہ کے ہیں۔ وہ مال سعودیہ تک کیسے لے کر جاتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر کراچی سے بلوچستان تک سارا اسلحہ کس طرح پہنچانا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے ہے۔ ایم آز ہلکا سا آگے کو جھکتا ہوا بولا۔ جی، میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ آہل جلدی سے بولا۔ منہاج نے نفی میں سر ہلاتے انگلی سے بھی اشارہ کیا، پھر صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا بولا، ممکن ہی نہیں، ہر ناممکن مدد بھی کرنا ہوگی تمہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ آہل کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ ہائی وے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ڈیک تمہیں ٹرک دکھا دے گا، نمبر پلیٹس لگی ہیں ان پر، 3 ٹرک ہیں۔ نمبر نوٹ کر لو۔ ہائی وے سے یہ ٹرک بغیر کسی رکاوٹ کے گزر جانے چاہیے، بغیر چیکنگ، اوکے؟ منہاج نے سوالیہ پوچھا، بے لچک انداز تھا اس کا۔ جی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ آہل نے بمشکل تمام جملہ مکمل کیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ایم آز مسکراتے ہوئے کہہ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور کوٹ کا بٹن بند کرتا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈیک آہل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا اندر آیا۔ ڈیک نے جوس کا ایک گلاس آہل کو پکڑایا اور ایک ریڈ وائن کا گلاس اپنے لیے بھرنے لگا۔ ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس، کوئی ترکیب ڈھونڈو یہ کام کرنے کی۔ اس کا معاوضہ کیا ہوگا یہ اندازہ تو تمہیں ہو چکا ہوگا۔ ڈیک نے لفظوں کا جال بننا شروع کیا۔ آہل آہستہ آہستہ اس جال میں پھنسنے لگا تھا۔ کلاس روم کا دروازہ بند تھا، پروجیکٹر آن تھا اور لائٹس آف۔ 40 سالہ ایک شخص جو ٹیچر معلوم ہوتا تھا، وائٹ بورڈ پر بلیو مارکر سے سلائیڈ پر موجود پوائنٹس کو واضح کر رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک کی آواز نے ماحول میں خلل پیدا کیا۔ وہ ریاضی کے استاد تھے۔ ان کی کلاس میں موجود ٹیچر کو جانے کیا کہا تھا کہ وہ حیران ہوتے ان کے ساتھ ہی چل پڑے۔ اتنے حیران تھے وہ کہ کلاس کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیا۔ پورے سینٹر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تبھی ایک لڑکی پھولی سانس کے ساتھ بھاگتی ہوئی تیسرے ڈیسک پر موجود نیلم کے پاس آئی۔ وہ نیلم، تم یہاں بیٹھی ہو اور باہر تمہارے دونوں بوائے فرینڈز آپس میں لڑ پڑے ہیں۔
आधी एकेडमी जमा हो गई है नीचे सड़क पर। एडमिनिस्ट्रेटर के रोकने पर भी नहीं रुक रहे। अब तुम ही जाकर रोको उन्हें, तुम्हारे अलावा किसकी सुनेंगे? वो लड़की तेज तेज बोल रही थी। यूं मालूम होता था जैसे गले में बफर्स फिट कर रखे हों। क्लास में मौजूद लड़के लड़कियां हैरान शक्ल लिए नीलम को देखने लगे। सब लड़के अपनी नशिस्तें छोड़कर नीचे तमाशा देखने जा पहुंचे, जबकि लड़कियां आपस में खुसर खुसर करने लगीं। नीलम के हवास थोड़े ठिकाने पर पहुंचे तो वो जल्दी से उठी। हड़बड़ाहट में नोटबुक पेंसिल नीचे गिर गई, मगर वो सेकंड फ्लोर से चंद सातों में ही ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। गेट के सामने स्टूडेंट्स का हजूम लगा था। एडमिनिस्ट्रेटर सर एनुल हक भी वहीं खड़े थे। चेहरे पर हर दर्जा संजीदगी तारी कर रखी थी। रेंजर्स के आते ही दोनों लड़के जो गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे एकदम से अलग हो गए। अब उनके चेहरे नीलम को नजर आए। वो दोनों उसके क्लास फेलोज थे। उनका क्लास के दौरान घूरना, रास्ते में पीछा करना और 2-3 रॉन्ग नंबर्स, नीलम को सब याद आने लगा। मगर ये सब वो पहले भी बर्दाश्त कर चुकी थी, इसलिए उसने ज्यादा तवज्जो ना दी और अब वो मुआवजा भुगत रही थी। सर एन ने खा जाने वाली नजरों से गेट के दरमियान में खड़ी नीलम को देखा और फिर रिसेप्शन पर मिस आयला के पास आए। मिस आयला, सेकंड ईयर सेक्शन ए की नीलम अबरार के फादर का नंबर बताएं मुझे। पास खड़ी नीलम ने थूक निकला। सर, उसने कुछ कहना चाहा था मगर उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। मिस आयला ने कंप्यूटर पर डाटा रिसर्च किया और नंबर बताने लगी। नीलम के आंसू बेख्तियार होने लगे। आते जाते स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करती नजरों से उसे कोफ्त हो रही थी। जी अबरार साहब, क्या आप इस वक्त अपनी साहबजादी को अकेडमी से लेने आ सकते हैं? दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया था। सर एन ने कान से फ़ोन हटाते नीलम को देखा। आप ऑफिस में जाकर बैठें। तकरीबन 20 मिनट बाद अबरार साहब ऑफिस रूम में दाखिल हुए, जहां सिर्फ नीलम बैठी थी। उनके पीछे ही सर एन भी रूम में दाखिल हुए। पूरा किस्सा सुनाने के बाद वो नीलम को देखते कहने लगे, हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसका इल्म एक उस्ताद से ज़्यादा किसको होगा। आप लेक्चरर हैं, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हर जगह का माहौल जानते हैं। अपनी बेटी का गैर मामूली हुस्न देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाने में देर तो नहीं लगी होगी कि इसका यूं बाहर निकलना आपको कितने मसाइल से दो चार कर सकता है। फिर भी आपने लापरवाही दिखाई। अगर मैं उन 2 स्टूडेंट्स को एकेडमी से निकालूंगा तो वजह पूरे मोहल्ले में इश्तिहार की तरह लग जाएगी। ऐसे में आपकी बेटी का ही नाम आएगा। अब आप बताएं इस मसले का क्या हल निकाला जाए। अबरार साहब की कुशादा पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। चेहरे से सुर्खी झलक रही थी। उन्होंने आछी रंग के स्कार्फ और ट्राउजर के साथ धानी रंग की कमीज पहने, शेफोन का दुपट्टा कंधे पर डाले अपनी बेतहाशा खूबसूरत बेटी को देखा। कितना मना किया था अम्मा ने कि मत दाखिला करा इसका अकेडमी में, मगर उन्हें बेटियों को तालीम दिलवाने का शौक था। अब न जाने क्यों पछता रहे थे। नीलम कल से एकेडमी नहीं आएगी। आप उन 2 लड़कों को मत निकालें और अगर हो सके तो इस बात को यहीं दबा दें। अबरार साहब ने इल्तिजाइया कहा, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहें। बात एकेडमी से बाहर नहीं जाएगी। सर एन की तसल्ली खोखली थी। ये तो वो खुद भी जानते थे। वो और अनस डब्बे उठा उठा कर वैन भर रहे थे जब उससे छोटी सी मेहरान से रोती हुई नीलम को निकलते और फिर अंदर गुम होते देखा। उसके पीछे ही अबरार साहब भी निकले थे। गेट खोलकर गाड़ी गैराज में खड़ी करने लगे। अस्सलाम वालेकुम। टाइगर अपना काम छोड़कर उनके पास चला आया। वालेकुम अस्सलाम। अबरार साहब मुरवतन मुस्कुराए। कोई परेशानी है अंकल? टाइगर के पूछने पर वो ठिठके। नहीं बेटा। वो उसका कंधा थपकते बोले और फिर गाड़ी अंदर दाखिल करने लगे। टाइगर कुछ तजव्वुज़ का शिकार दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं तो पहले ही कहती थी, मगर मेरी यहाँ सुनता कौन है। 18 की होने लगी है। रुखसत कर इसे। किसी दिन इसकी ये सूरत हमें रुसवा करके ही छोड़ेगी। इसी दिन का डर था। इसी बदनामी जगह साई से डरते थे। तुझे क्या कहा करती थी कि कर दे हाँ इसकी ताई को। पहले की बात और थी, अब तो माशाल्लाह अहिल अच्छा कमा रहा है। गाड़ी ले ली है, प्लाट ले चुका है, घर भी बन जाएगा। बस बहुत सुन ली मैंने तेरी, अब वो नहीं। बस मैं इसरार को कल ही हाँ कर रही हूँ, इस इतवार मंगनी कर देंगे। दादो तो पूरी बात सुनने से पहले ही शुरू हो गई। नीलम साइका के साथ लगी हिचकियों से रो रही थी। अबरार साहब एक कुर्सी पर दोनों हाथ आपस में जोड़े परेशान से बैठे थे। ह, हमने नहीं करनी कोई शादी वादी। नीलम रोने के दरमियान बोली, चुप कर तू और जा बन ठन कर। इसीलिए बोलती थी चादर लेकर निकला कर, मत जा अकेडमी। मगर नहीं, अब जो मैं कहूँगी वही तुम बाप बेटी करोगे और अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ तो चली जाऊंगी अपने बड़े बेटे के घर। दादो तैश में आ चुकी थी। अम्मा आप तो ऐसा मत कहें। अबरार साहब मुल्तजी अंदाज में गोया हुए। मुझसे आलिया, आहिल की माँ और इसरार दोनों कह चुके हैं, मगर तब तुम्हें उनके माली हालात पर एतराज़ था। मगर अब जब वो एतराज़ खत्म हो चुका है तो हाँ करने में कोई कबाहत नहीं। दादो ने ठोस लहजा अपनाया। हम नहीं करेंगे आहिल भाई से शादी और एकेडमी भी जाएंगे। हमारे प्री मिलियनर हो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, होने वाले हैं। उसके बाद फाइनल्स हैं और जब हमारी कोई गलती ही नहीं तो हम क्यों मुँह छुपाएं। अच्छी शक्लो सूरत का होना कोई गुनाह नहीं है जिसकी सजा आप लोग हमें दे रहे हैं।
تنگ آ چکے ہیں ہم، اگر ہم خوبصورت ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں قید کر دیا جائے، کوئی ہماری شکل نہ دیکھے، اس سے اچھا ہے تیزاب ڈال دیں ہمارے چہرے پر، اس کی خوبصورتی ختم ہوگی، تبھی ہم کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے۔ وہ بے دردی سے آنسو پہنچتی ہے کہ سانس میں کہہ گئی، پھر اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے روم میں چل دی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوکھ چکی تھیں، مگر ان گہری سبز جھیل سی آنکھوں کے سوجے کنارے بھی بلا کے پرکشش لگ رہے تھے۔ اسے نفرت ہونے لگی اپنے حسین چہرے سے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے روک ٹوک کا شکار رہی تھی۔ وہ نیشنل ہائی ویز کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ سامنے ہی اسٹڈی ٹیبل پر 2 نیلے رنگ کی فائلز تھیں، جن میں نیشنل ہائی وے N10 اور کراچی گوادر N25 کراچی چمن کی ڈیٹیلز تھیں، اور ساتھ ہی ان ہائی ویز پر موجود پولیس ڈیوٹیز کی بھی ڈیٹیلز تھیں۔ وہ انہیں دماغ سے ان کو اسٹڈی کر رہا تھا جب عالیہ بیگم اندر آئیں۔ چائے کا مگ ہاتھ میں اٹھائے وہ اس کے پاس ہی چلی آئی تھیں۔ آہل بیٹا بس کرو، 12 بج گئے ہیں اور تم ہو کے آرام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شاباش، بند کرو اسے، باقی کا کام کل کر لینا۔ نہیں امی، ابھی بہت کام پڑا ہے، آپ بتائیں خیریت سے آئی ہیں؟ اس نے چائے کا مگ پکڑتے کہا۔ ہاں خیریت ہے، اور ایک اچھی خبر کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ آہل لیپ ٹاپ تھوڑا بینڈ کر کے کرسی گھما کر ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کیسی خبر؟ چائے کا سپ لیتے پوچھا۔ تمہاری دادوں نے نیلم کے لیے ہاں کر دی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سچی؟ آہل مگ ٹیبل پر رکھتے ان کا ہاتھ دباتے بولا۔ ہاں بھائی، ایک دم سچ، اور منع کرنے کا جو جواز ان کے پاس تھا وہ تو تمہاری محنت اور لگن نے ختم کر دیا۔ اور کیا چاہیے ان کو؟ وہ آہل کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے بولی۔ پھر کب جا رہے ہیں ہم؟ وہ بے صبرا ہوا۔ کل ہی چلتے ہیں، تمہارے بابا بھی کل فارغ ہیں، اور نیک کام میں دیری کیوں؟ انہوں نے اس کی ٹھوٹی پکڑتے پیار سے کہا۔ شکریہ امی، آپ بہت اچھی ہیں، وہ بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگا کہہ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ انہیں نیلم بہو کے روپ میں نہیں پسند، مگر صرف اس کی خاطر وہ مان گئی تھی۔ آپ ہی ہمیں نہیں کرنی آہل بھائی سے شادی، ہم بتا رہے ہیں، ہم سب کے سامنے منع کر دیں گے، پھر ہمیں مت کہیے گا کہ ہم نے بابا کی انسلٹ کرائی ہے۔ وہ سفید اور گلابی رنگ کی گھیردار فراک کو اٹھا کر دور پھینک چکی تھی۔ سائیکا اسے تیار ہونے کا کہنے آئی تھی۔ دادوں کا خیال تھا کہ آج ہی منگنی کی تاریخ رکھ دیں اور خاندان بھر میں بات پھیلا دیں، تاکہ جو بقیہ رشتہ دار امید لگا کر بیٹھے ہیں سب کو ایک ہی بار میں جواب مل جائے۔ گڑیا ضد نہ کرو، تیار ہو جاؤ، تایا لوگ آنے ہی والے ہوں گے، اور دیکھو ایسا کر کے تمہیں کیا ملے گا، دادوں کی ضد سے تو آگاہ ہو نا تم۔ سائیکا نے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے روتی نیلم کے بال سہلائے۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہی ہیں دادوں ہمیں؟ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، لیکچرر بننا چاہتے ہیں۔ تو منع کس نے کیا ہے تجھے؟ چلی جانا یونیورسٹی بھی، مگر شادی کے بعد۔ آہل کی اجازت سے۔ دادو نہ جانے کب کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں دادو، ہمارا مذہب بھی لڑکی کی رضامندی کا حکم دیتا ہے۔ پھر آپ وہ جو چیخ کر بول رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ دادو کی اس سے بھی تیز دار آواز میں بات کاٹنے پر خاموش ہو گئی۔ مجھے مذہب دین مت سکھا، 5 نمازیں پڑھتے موت پڑتی ہے اور مجھے بتا رہی ہے اسلام اور دین۔ اٹھ اور کپڑے بدل کر نیچے آ، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو 12ویں کے امتحان بھی نہیں دینے دوں گی۔ ابھی صرف اکیڈمی چھڑوائی ہے، کالج نہیں۔ ان کی دھمکی پر نیلم صدمے سے چور ہو کر رہ گئی۔ ابرار صاحب بھی اب کی بار اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آہل کا رشتہ ان کی نظر میں ایک اچھا رشتہ تھا، پھر بھائی کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا، اسی لیے وہ خاموش تھے، بلکہ اگر خوش تھے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دونوں بہنیں اور ماں پچھلی نشستوں پر براجمان جلدی سے باہر نکلیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آہل کے ساتھ بیٹھے اسٹار صاحب بھی کار سے نکل چکے تھے۔ وہ کار ریورس کرتا مناسب جگہ کھڑی کرنے لگا تھا کیونکہ گیراج بہت چھوٹا تھا، جب اچانک کار پیچھے کھڑی بائک سے ٹکرا گئی۔ بائک سڑک پر گر چکی تھی جب آہل فٹافٹ باہر نکلا۔ آر یو بلائنڈ مین؟ ٹائیگر نے بائک کھڑے کرتے غضبناک لہجے میں کہا۔ بلیک جینز اور جیکٹ کے ساتھ سرمئی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، فولڈڈ سلیوز اور فوجی کٹ اسٹائل کے بال جو آگے سے کچھ ماتھے پر گر رہے تھے۔ آہل کو وہ بے حد ڈیشنگ لگا۔ سوری فار دیٹ مین، آہل نے معذرت خواہانہ لہجہ اپنایا۔ آہل اندر آؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ارے ٹائیگر تم! وہ آہل کو بلانے آئے تھے۔ جب ٹائیگر کو اس کے ساتھ کھڑے دیکھا تو تعارف کروانے لگے۔ یہ آہل ہے، میرا بھتیجا اور ہونے والا داماد ہے۔ آہل کی تو اس تعارف پر باچھیں چر گئیں، جوش سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ ٹائیگر کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ یہ ٹائیگر ہے، ہمارے نئے کرایہ دار، ماشاءاللہ بہت ہی فرمانبردار بچہ ہے۔ انہوں نے ٹائیگر کا کندھا تھپتھپایا۔ ٹائیگر؟ آہل کو نام کچھ عجیب سا لگا۔ روحان عاکف، ٹائیگر نے مسافے کے لیے بڑا ہاتھ تھامتے کہا۔ اچھا سوری، بائک کے لیے، آہل نے کان کھجاتے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ٹائیگر نے آہل سے کہتے ابرار صاحب کی طرف رخ کیا۔ اچھا انکل، چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو تکلف مت کیجیے گا۔ نہیں تکلف کیسا، کوئی کام ہوا تو تمہیں سب سے پہلے یاد کروں گا۔ ٹائیگر مسکراتے ہوئے چلا گیا۔
ओह माय गॉड नीलम, तुम तो कोई कोई परी लग रही हो। एमन ने पिंक और व्हाइट फ्रॉक में खुले बालों को कंघी करती नीलम को देखकर कहा। वो खामोश रही। तुम्हारे बालों का मैं कोई हेयर स्टाइल बनाऊं? ईशा ने पूछा। नो थैंक्स। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती अपने शहद रंग सिल्की बालों की पोनी बनाने लगी, मगर बाल कमर से भी नीचे तक जा रहे थे। नीलम से संभाला मुश्किल हो गए। आपी वो चिड़चिड़ी सी होती साइका को आवाजें दे रही थी, जो शायद किचन में मसरूफ होने की बिना पर सुन नहीं पा रही थी। उफ नीलम, दो मैं बना देती हूँ। ईशा ड्रेसिंग के पास आकर उसके हाथ से हेयर ब्रश थाम कर बोली, जब मना कर दिया है हमने कि नहीं बनवाने तुमसे बाल, तो क्यों पीछे पड़ गई हो? वो बदतमीजी से कहते उसके हाथ से ब्रश ले चुकी थी। अभी ना सही मुस्तकबिल में शायद तुम्हें ये काम हमसे ही करवाना पड़े। अब आहिल भाई तो तुम्हारे बाल बनाने से रहे। एमन के कहने पर नीलम की तेवरी चढ़ गई। हमारे हाथ नहीं टूटे जो तुम्हारे भाई से बाल बनवाएंगे। गुड़िया बुरी बात, क्यों बिला वजह गुस्सा हो रही हो? साइका ने खफगी से कहा। हाथ में मौजूद ट्रे एमन ने थामते उसमें से एक गिलास खुद लिया और दूसरा बहन को दिया। दिमाग खराब हो गया है हमारा तभी। वो ब्रश पटक कर बोली। लाओ। साइका ने ब्रश थामा और चंद मिनटों में ही शहद रंग बालों का खूबसूरत सा स्टाइल बना दिया। छोटी सी नोज पिन उस पर बहुत उठ रही थी। जब वो नीचे आई तो दादो ने उसकी भलाई ली, नजर उतारी। हमेशा दूर से ही सलाम का जवाब देने वाली ताई उससे साथ चिपकाए बैठी रही। सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस आहिल भी काफी शानदार दिख रहा था। बार बार उसे अपनी जानिब मुतवज्जे करने के हरबे आजमाता नीलम को जहर लग रहा था। घर की ही बात थी, कोई रोक टोक ना थी। सबने इकट्ठे खाना खाया और 3 दिन बाद इतवार को मंगनी की तारीख रखी गई। ये तो सरासर ज्यादती हो रही है मेरे साथ। मुंह मुझे मीठा करवाना चाहिए और यहाँ अम्मी ही सब किए जा रही हैं। निकाह नामे पर भी उन्हीं से साइन करवा लेना। आहिल ने साइका के कान में सरगोशी की। दादो से कहती हूँ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। वो शरारती लहजे में बोली। अरे क्या साली साहिबा, जब ये काम आप खुद कर सकती हैं तो फिर दादो को क्यों तकलीफ दे रही हैं? वो संजीदगी से मजाक कर रहा था। शक्ल देखो, दादो के नाम पर ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब ऐसी भी बात नहीं, कर दो ना ये काम प्लीज। वो मुल्तजी लहजे में बोला। चलो कर दूंगी, क्या याद करोगे, इतनी सखी दिल साली मिली है। वो हंसी। आहिल माँ और दादी के दरमियान मुंह फुलाए बैठी नीलम को देख रहा था। नजर थी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी और दिल था कि बेख्तियार ही होता जा रहा था। जान बन गई थी ये लड़की आहिल इसरार की। एक दो पिन्स एनफ थी। आपी ने सारे जहां की पिन हमारे ही सर पर लगानी थी। वो शदीद झुंझलाहट में मुब्तला हेयर पिन्स उतार रही थी जब ड्रेसिंग मिरर में अपने पीछे आहिल का अक्स उभरता नजर आया। नीलम का हलक तक कड़वा हो गया। मैं हेल्प कर दूं? शरारत आंखों में नाच रही थी। आप हमारे कमरे से जाते हैं कि हम दादो को बुलाएं? वो गुस्सा जब्त करने की कोशिश में सुर्ख होती और हसीन लगने लगी थी। हमारा कमरा भी बोलती हैं और जाने को भी कहती हैं। इट्स नॉट फेयर। वो ड्रेसिंग टेबल के किनारे टिक गया। हम ही चले जाते हैं। नीलम उसकी तरफ से मायूस होकर जाने को मुड़ी थी जब वो उसकी राह में हायल हो गया। मैं तो गुड़िया का मुंह मीठा करवाने आया था। आहिल ने मिठाई का डिब्बा पकड़ रखा था। उसमें से एक गुलाब जामुन निकालकर नीलम के सुर्खी माइल होंठों की जानी बढ़ाया। हमारी जिंदगी बर्बाद करके उसमें जहर घोलकर आप हमारा मुंह मीठा करवाने आए हैं? वो उसका हाथ झटक चुकी थी। गुलाब जामुन कहीं दूर ही जा गिरा था। आहिल का चेहरा शिद्दत जब्त से जल उठा था। किस जहर की बात कर रही हो? वो संजीदा था। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से दादो ने हमारी एकेडमी खत्म करवा दी और अब यूनिवर्सिटी से भी मना कर दिया। हमारा लेक्चरर बनने का ख्वाब सिर्फ आपकी वजह से चिकनाचूर हो गया। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी। ये उसकी आदत थी, मिजाज के खिलाफ बात पर चीखना और रोते हुए बात करना। स्टॉप क्राइंग। आहिल ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर पटका। नीलम ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा था। देखो गुड़िया, मुझे नहीं पता दादू ऐसा क्यों कह रही हैं। ना ही इस बारे में मेरी उनसे कोई बात हुई है, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद एडमिशन करवाऊंगा तुम्हारा यूनी में, जिसमें तुम कहोगी। बस खुश? वो उसके पास नीचे घुटने मोड़कर बैठा था और एकेडमी, उसकी सुई अब भी वहीं अटकी थी। अकेडमी नहीं गुड़िया, वहाँ वो लड़के तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आहिल ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे। बच्चे नहीं हैं हम जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाकर चला जाए और हम देखते रहे। वो उसका हाथ झटक कर भड़कते हुए बोली। अच्छा अच्छा, गुस्सा तो ना हो, मैं दादो से इजाजत लेने की कोशिश करूंगा। वो बहलाने लगा। टाइम इज ओवर नाउ। साइका की आवाज पर आहिल उठकर खड़ा हो गया। नीलम ने आंसू साफ किए। अल्लाह, मेरी बहन को रुला दिया तुमने। तुमने ऐसा भी क्या कह दिया? साइका ने मसनूई हैरत से कहा। हमारी ऐसी जुर्रत कहाँ? आहिल ने हंसकर कहा और वो बातों में मगन कमरे से निकल गई। नीलम फूट फूट कर रो दी। क्या चीज थी जो उसे रुला रही थी, अंदर ही अंदर खा रही थी, खोखला कर रही थी। आंखों में फिर मिर्चें भरने लगी थीं। वो दोनों घुटनों को बाजुओं के हिसार में लिए उन पर सर रखे हिचकियों से गिरिया उजारी में मसरूफ हो गई। अभी तो एहसास हुआ था मोहब्बत का, अभी तो जज्बों की शाख से मोहब्बत कोंपल फूटी थी। अभी तो आसमान पर बिखरे तारे सुहाने लगे थे, अभी तो गीत गुनगुनाए थे, अभी तो साज छिड़े थे, अभी तो कलियां खिली थीं कि आसमान से हो गया। गीतों की जगह नोहों ने ले ली थी। साज में गम की नमी घुलने लगी थी। सब खत्म हो चुका था शुरू होने से पहले।
बड़ी सी मेज के ऊपर बिल्कुल दरमियान में बल्ब लगा था और उसके वसत में सफ़ेद रंग का चार्ट पड़ा था जिसके ऊपर पेंसिल से किसी रास्ते की स्केचिंग की हुई थी। वो बड़े गौर से उसका जायजा ले रहा था जब अनस अंदर आया। उसके एक हाथ में छोटा सा डिब्बा था और वो मुंह में कुछ चबा रहा था। ये लो, अनस ने डिब्बा उसके आगे किया। क्या है? टाइगर ने डिब्बे में झांके बगैर पूछा। वो अब तक हाथ में पकड़ी पेंसिल से चार्ट पर निशान लगा रहा था। मिठाई है, अबरार अंकल देकर गए हैं। उनकी दुख्तर की बात पक्की हो गई है और इतवार को मंगनी है। अनस उसके बराबर वाले स्टूल पर चढ़कर बैठ गया। मुझे नहीं खाना इतना मीठा, वो उसकी जानिब देखे बगैर मसरूफ अंदाज में बोला। खा ले, डाइन की नहीं बड़ी वाली की हुई है, अभी तो वो छोटी है बहुत। अनस ने हंसते हुए कहा। जवाबन टाइगर ने सर्द नजरों से उसे घूरा, पेंसिल भी हाथ में ही मोड़ दी। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं आई समझ। टाइगर के गुस्सा होने पर अनस कुछ खफीफ सा हो गया। यार मैं तो मजाक ही कर रहा था। जाहिर है बड़ी बेटी की ही मंगनी हुई होगी, छोटी वाली तो अभी बहुत कम उम्र है। अनस ने फजूल वजाहत दी। बड़ी की हो या छोटी की, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए दोनों। यहाँ हमारी जिंदगियों का सवाल है और तुम्हें फजूल बहस सूझ रही है। वो उसे अच्छा खासा सुनाकर अब फिर से एक चार्ट खोल चुका था। उस पर भी पहले से मिलते जुलते कुछ नक्शो निगार बने थे। ज़्यादा ही हो गया है, इतनी अच्छी लड़की है मगर पत्थर से सर फोड़ रही है। अनस ने बुरा सा मुंह बनाते कहा। टाइगर ने अबरू उचकाते उसे देखा और फिर दोबारा चार्ट पर झुककर आहिस्ता से बोला। तो तुम ये बात उसे क्यों नहीं समझा देते? समझा दूंगा, अगर अकल हुई तो जल्द समझ जाएगी। अनस ने एक और गुलाब जामुन मुंह में रखा। औरत जात में अकल और हुस्न कभी एक साथ नहीं रह सकते। टाइगर ने तबसरा किया। तुम्हारी फजूल सोच है और कुछ नहीं। अनस बड़बड़ाते हुए डिब्बा लेकर बाहर चला गया। सेकंड गुजरे, मिनट गुजरे, घंटे गुजरे, फिर दिन यहाँ तक कि इतवार का दिन भी आ पहुंचा। रौनक तो इतनी ना थी, सिर्फ इसरार साहब का घराना और दो रिश्तेदार फैमिलीज आई हुई थी। नीलम को सजा सवार कर नीचे हॉल में ले जाया गया जहां मंगनी के फंक्शन का मुकम्मल इंतजाम कर रखा था। आलिया बेगम ने अंगूठी निकाली और नीलम को हाथ देने का इशारा किया मगर वो चूड़ियों से सजे हाथों को गोद में छुपाने लगी। वो हैरान सी होती सबको देखने लगी जब दादों के इशारे पर साइका आगे बढ़ी और हाथ थामने लगी। नीलम जोर जोर से नफी में सर हिला रही थी। नैन कटोरे भी छलकने को बेताब होने लगे। गहरी आंखों में आंसू के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। साइका की तंबीह करती नजरों पर उसने बेदर्दी से लब काटते हुए आंसू अपने अंदर उतारे थे। वो जो हर बात जिद मनवा लेती थी आज हार गई थी। वो छोटी थी, सब उसे छोटा और नासमझ जानकर उसकी रजा की परवाह नहीं कर रहे थे मगर वो तो न जाने दिल में उस रिश्ते से फरार के लिए क्या क्या मंसूबे बना चुकी थी। अंगूठी पहना दी गई थी। हॉल में तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। नीलम के सर पर गोया हथौड़े बरस रहे थे। वो बेबसी से बैठी मुस्कुराते सरशार से आहिल को अपनी जानिब देखती रही। फिर वो ज़्यादा देर मेहमानों में नहीं बैठ सकी। साइका ने भी उसे ले जाना ही बेहतर समझा था। कितनी अच्छी थी इश्क की इब्तदा अब्बास, मगर उसकी इंतहा से अल्लाह बचाए। ओ साइका, गली में किसी बच्चे को बोल साथ वाले घर से टाइगर या अनस को बुला दे। तेरे अब्बा तो जाने कब आए, मेरा ड्रामा निकले जा रहा है। दादो तख्त पर बैठी ऊंची आवाज में बोली। अच्छा दादो, मैं कहती हूँ। साइका ने जल्दी से बर्तन वहीं छोड़े और बाहर गेट तक आ गई। थोड़ी ही देर बाद टाइगर दरवाजे से अंदर आया था। साइका को गैराज में खड़े देखा तो पूछने लगा, कोई काम था आपको? जी, वो जरा छत पर जाकर केबल की तार तो ठीक कर दें। पता नहीं क्या हुआ है, कोई चैनल सही नहीं आ रहा। टाइगर बेटा, दादो की आवाज़ पर साइका ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। जी दादो। वो ड्राइंग रूम के सिरे पर खड़ा दादो को तख्त पर विराजमान देखकर बोला। अरे बेटा, केबल को देख तो क्या हुआ है? दादो ने हाथ हिलाते नखुअत से कहा। मैं देखता हूँ। टाइगर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। आप रहने दें, मैं देख लूंगा। साइका को अपने पीछे छत पर आता देखकर उसने कहा। साइका सर हिलाती दोबारा किचन में चलती। नीलम ने टाइगर को सीढ़ियां चढ़ते देखा और फिर साइका को अकेले वापस जाते। दिल पहले ही भरा पड़ा था, अब चूंकि मुजरिम भी सामने था और कुछ कदमों की दूरी पर, तो वो देर क्यों करती। तभी जल्दी से अपने रूम का दरवाजा बंद करके छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो शायद बचपन से ही इतनी जज्बाती थी, जिद्दी थी, बात को चुटकियों में उड़ा देने वाली, मगर अब दिल पर लगी थी तो चुटकी में बात उड़ ही नहीं रही थी। टाइगर स्टूल पर खड़ा केबल के तारों से कुश्तियां करने में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद हाथ झाड़ता स्टूल से नीचे छलांग मार चुका था, मगर जो ही नजर नीलम की जानी पड़ी, चंद पल को जैसे ठहर गया था। वो हद दर्जा गमगीन लग रही थी, मगर वो नजरअंदाज कर गया। पास से होकर गुजर जाना चाहता था। जब वो रास्ते में हाइल हो गई, टाइगर ने दांत पीस लिए, साथ ही चेहरा भी मोड़ लिया। वो उसे देखना नहीं चाहता था। वो सूरत जिसके हुस्न के दीवाने उसे जीने नहीं देते थे, वही हुस्न उसके पास चलकर आता था और वो निगाहें गलत तक न डालता। बहुत खुश हैं ना आप? इस अंगूठी को हमारे हाथ में देखकर उसने अपने हाथ की पुश्त उसकी जानिब करते हुए कहा, जिसमें सोने की अंगूठी अपनी फतह पर मुतमईन थी। टाइगर को हैरत हुई। अनस ने तो कहा था कि बड़ी की मंगनी हुई है।
बड़ी की हो या छोटी की, मुझे क्या? अगले ही पल उसने सर झटका। हमारी मंगनी का सुनकर बहुत खुशी हुई होगी ना आपको, सोचा होगा कि जान छूटी। वो बरहमी से कह रही थी। एक आंसू भी छलक पड़ा था। टाइगर को कोई फर्क न पड़ा, वो तो बस जाने को पर तोल रहा था, मगर वो काली काली बिल्ली की तरह रास्ता काटे खड़ी थी। मंगनी हमारी जिससे मर्जी हो, शादी तो हम आपसे ही करेंगे। जिद्दी बच्चे का सा लहजा था उसका। मुझे आपकी फजूल गोई में कोई दिलचस्पी नहीं, रास्ता छोड़ें, टाइगर ने नागवारी से कहा। आपके हर रास्ते पर नीलम खड़ी है। हमसे फरार हासिल करेंगे तो जान ले लेंगे, आपकी भी और अपनी भी। वो तमाम फासले समेटती उसका कॉलर पकड़ चुकी थी। सब्ज कांच स्याह आंखों में गाढ़े वो मुकाबिल को चारों शाने चित करने का हौसला रखती थी। आपने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं अंकल को सब बता दूंगा। आपकी बदतमीजियां बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने। नाउ इट्स एनफ, सुना आपने? वो जब्त के मारे सुर्ख पड़ते चेहरे से गोया हुआ, साथ ही बेदर्दी से उसके हाथ पर अपने गिरेबान से हटाए थे। पूरी दुनिया को बता दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुना आपने? वो भी उसी के अंदाज में चिल्लाई थी। आपका तो दिमाग खराब हो गया है, वो इश्तिहार में आ चुका था। हाँ, हो चुका है हमारा दिमाग खराब। जब से आप हमारे सामने आए हैं, जहन के पर्दे पर चिपक कर रह गए हैं, हटने का नाम ही नहीं लेते। जीना हराम कर रखा है आपने हमारा। सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके सिवा कुछ अहम नहीं, आप नहीं तो नीलम नहीं, ये जहान नहीं, हम पागल हो जाएंगे। यकीन करें, हमें आपकी जानिब खींचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम खुद नहीं रोक पा रहे खुद को। सब कसूर आपका है ना, आप आते ना ये सब होता। इतने खुश थे हम, आपने आकर। वो रोते हुए बोलती, हाँ, बार बार हाथ की पुष्ट से गाल रगड़ती टाइगर को मजीद गुस्सा दिला रही थी। मैंने आकर कुछ नहीं किया, ये सब आपके अपने दिमाग का खन्नास है। बिला वजह मुझे मोटे इल्जाम मत ठहराएं। अपनी ये अफसानवी दुनिया से बाहर निकलें तो आप यकीनन नॉर्मल हो जाएंगी। और आखिरी बात, आइंदा ये सब खुराफात हमारे सामने उगली तो अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। हटें आप। अपनी बात मुकम्मल करके वो उसे बाजू से दबोच कर सीढ़ियों की जानिब जाने वाले रास्ते से हटा चुका था। फिर तेज तेज सीढ़ियां फलांगता वो एक सेकंड से भी कम अरसे में उसकी नजरों से ओझल हुआ था। वो ख्वाब के देखा ना कभी ले उड़ा नींदें, वो दर्द के उठा ना कभी खा गया दिल को। वो वाकई ही कम उम्र, कम अकल और जज्बाती थी। बच्चों की तरह नंगे पैर जले फर्श पर बैठी रो रही थी। उसे एहसास नहीं था कि वो क्या कह गई है, क्या कर गई है। वो नहीं समझती थी कि जिस माशरे का वो हिस्सा है, वहाँ औरत को सच्ची मोहब्बत के इकरार की भी इजाज़त नहीं, और मर्द को सुबह शाम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औरतों से बिला खौफ व खतर बेकरारियों के इजहार पर कोई रोक टोक ना थी। उसे नहीं पता था कि वो अपनी अना खुददारी एक अनजान शख्स के सामने कुचल चुकी है। उसे पता था तो बस ये कि वो अब अनजान नहीं रहा था, वो अजनबी नहीं था, वो था जिसका उसे इंतजार था, जिसके लिए वो अपनी दीवारें चार्ट्स से भरा करती थी। मगर वो भूल गई थी या भुला दिया था कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलता वही है। चाहे आप बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ो या सड़क पर लेट कर एहतजाज करो, किस्मत बहरी हो जाती है, वो आपकी नहीं सुनती। निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुनिया बड़ी संगदिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। फार्म हाउस में दाखिल होते ही ईगल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। क्या कमाल की जगह थी। एक तरफ रेगिस्तान लगता तो दूसरी तरफ बाहर का सा समा था। बहुत से मजहबी चोले में बलबू से अफराद ट्रकों पर सामान लोड कर रहे थे। बड़ी बड़ी बोरियां कंधों पर डाले वो सब लोग बहुत मसरूफ नजर आ रहे थे। ये तीन तीन ट्रकों में क्या रखा है? हम कुछ मदद कर सकता है? ईगल ने अपने बराबर ही पुजैरों की पिछली नशिस्त पर बैठे डीक को मुखातिब किया। नहीं, तुम इसमें कोई मदद नहीं करवा सकते, ये तुम्हारा काम नहीं है, डीक ने सख्ती से कहा। अरे वाह, तुम भी एमआज की तरह रोब झाड़ने लग गया है, ईगल ने बुरा मानते कहा। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये सब असलहा है और बलूचिस्तान पहुंचाना है। ये काम शेर दिल करेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ड्राइवर को इशारा करते जेक ने पिजारो रुकवा दी। ईगल उसकी बात पर सर हिलाता नीचे उतरने लगा। तुम अंग्रेजी भी बोलता है, पढ़ा लिखा है, तो इस काम में क्यों आया? वो दोनों साथ साथ चलते जमीन की कच्ची सतह से पत्थर की रविश पर जा रहे थे। जब ईगल के सवाल पर डीक के कदम में इख्तियार थम से गए थे, उस चेहरे पर तारीकी छा गई। हमारा मतलब तुम यहाँ का नहीं लगता, कोई अंग्रेज टाइप का लगता हो। ईगल जवाब ना मिलने पर अपने सवाल की वजाहत करने लगा। डीक ने सर्द शाम की बोझल फिजा के सुपुर्द करते कदम फिर आगे बढ़ाने को शुरू कर दिए। पलटने का वक्त नहीं था, ना ही इजाज़त। क्या करोगे तुम जानकर? डीक ने जैक की शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते कहा। ईगल की नजरें उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थीं। हम जानना चाहता है कि ये हीरो टाइप का बंदा विलन कैसे बना। ईगल ने संजीदगी की तय को बारीक किया था। हाँ हाँ, मेरे सर पर बचपन से ही बाल नहीं हैं। अब अगर इस वजह से मैं विलन नजर आता हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? डीक का लहजा भी हल्का फुल्का सा था। तुम बताओ ना हमको,
तुम किस स्कूल से सीखा इतना अच्छा अंग्रेजी बोलना? ईगल और डी की बहुत बन गई थी। एम आज को ईगल पर भरोसा नहीं था। तभी डीक उसकी मुकम्मल जासूसी पर लगा रहा। वो अपने काम में भी अच्छा था और रवैये में भी। 3-4 महीने हो चुके थे मगर एक बार भी उसके काम में कोताही नहीं हुई थी। अब तो मिनहाज भी उसकी जानिब से कुछ पुरसुकून हो चुका था। मैं अमेरिका का रिहायशी हूँ। डीक और वो बातें करते करते अब फार्म हाउस के वस्त में बने आलीशान बंगले के अंदर दाखिल हो गए। सफ़ेद रंग का बंगला। क्या? अंदर जाते ईगल के कदम ठिठक गए थे। हाँ, अमेरिका का रिहायशी, सऊदिया का कैदी और पाकिस्तान का स्मगलर और टेररिस्ट। डीक ने इत्मीनान से जवाब देते ड्राइंग रूम की मेज़ पर चाबियां उछाली और टांगे फैलाकर सोफे पर दराज हो गया। क्या? क्या? क्या तुम मतलब हम कुछ समझा नहीं। ईगल भी सामने सोफे पर आ बैठा मगर आगे को झुका भी आराम सा बेचैन सा बैठा था। ये सालों पहले की बात है जब अमेरिका में लावारिस बच्चों को चाइल्ड होम में छोड़ दिया जाता था और वालिदैन आज़ाद हो जाते अपनी अपनी ज़िंदगियों में। तब एक ऐसे ही दो मोहब्बत करने वालों का अंजाम डीक नामी शख्स की सूरत में हुआ। मुझे चाइल्ड होम में फेंक दिया गया। ये कैलिफोर्निया का चाइल्ड होम था। डेविड वहाँ का सरबराह था। वो बच्चों से जिनसी लज्जत का काम लेता था। मैं भी उन बच्चों की गिनती में उस वक्त आ चुका था जब मैंने 11 से 12 बरस की उम्र में कदम रखा। मगर मैं उसे बहुत तंग करता था। वो मुझे हमेशा मारता मारता पीटता गाली गलौज करके चला जाता था। एक बार उसने मुझे और 4-5 और बच्चों को उल्टा टांग दिया था। वो हमसे आजिज आ चुका था। उस रात डेविड ने लोहे की रॉड गर्म करके हमारे जिस्म झुलसा दिए थे। हम सिसक भी ना सके थे। रस्सों से जकड़े उल्टे लटके हम आहें भी ना भर सके। खून गर्दिश नहीं कर सका था उस रात हमारे जिस्मों में। तब 3 दिन भूखा रखने के बाद वो हमसे अपनी लज्जत पूरी करने में कामयाब हो गया। हमारी वीडियोस बनाई। तब मैं 14 बरस का था। वो रात बहुत भयानक थी। मैंने बहुत कोसा था अपनी ज़िंदगी को। मेरा जिस्म गिलाज़त से भर चुका था और उसका सबूत उस शैतान के पास महफूज था। मेरे बाल भी उस रात लोहे की गर्म रॉड के साथ ही चिपक चिपक कर ख़त्म हो चुके थे। मेरी नीली आंखें साफ शफाफ रंगत पुरकशिश नकूश उसके सऊदी साथी को बहुत भाई और मेरी डील कर ली गई। एक रात में सोया तो 2 रातों बाद सऊदीया में आंख खुली। एक कचरे और गिलाजत के ढेर ढेर से निकलकर मैं दूसरे में आ चुका था। यहाँ भी दिन रात टॉर्चर किया जाता। खाना तब तक ना मिलता जब तक आंतें चिपक ना जाती। बहुत जालिम थे वो लोग। ईगल बहुत जालिम। कहर बरसाते दिन रात अजियत ही अजियत थी। तकलीफ इतनी होती कि जान जाने लगती और जो गंदा काम वो मुझसे लेते मेरा मर जाने को जी चाहता। मगर मैं भी भला का ढीठ था। इन 4 सालों में भी मैं ना मरा और उनके अगले खेल के लिए चुन लिया गया। मेरा पुरकशिश सरापा उनके लिए उनके कारोबार के लिए बहुत मुफीद साबित होना था। तब उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। सऊदी औरतें जल्द मेरी शख्सियत की दीवानी हो जाती। मुझे उनसे शादी करके पहली रात की वीडियोस बनाकर देने का हुक्म दिया गया ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल करके पैसा निकलवाया जा सके। मुझे याद है वो मेरी पहली शादी थी जब पूरी रात गुजारने पर भी मैंने उस लड़की को छुआ तक नहीं। तब अदीन ने मुझे एक बार फिर लोहे के गर्म रॉड से पीटा। क्यों हीरो, लड़की पसंद नहीं आई थी क्या? वो जिल्लाद बना पूछ रहा था। मोटा मोटा पाइप डीक की बरहना कमर पर पड़ा। अगर पसंद नहीं आई थी तो कहा होता, बदल देते। डीक का पूरा मुंह झुलस चुका था। बार बार उसके मुंह से खून का फवारा उबल पड़ता। माफ़ कर दो अदीन। उस रात मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, माफ़िया मांगी और फिर उसके कहे पर अमल करने लगा। चंद साल बाद एक और लड़की आई मेरी ज़िंदगी में मगर उसकी शर्त थी कि पाकिस्तान जाकर तमाम रसूमात समेत शादी करेगी। उसके वालिद पाकिस्तान में रहते थे। तब मुझे पाकिस्तान जाने की इजाज़त मिल गई मगर 7 जासूस भी छोड़े गए। लेकिन इस बार गेम मेरे साथ खेली गई। कराची एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान मेरे बैग से असलहा निकल आया, वो भी बुलेट्स की भरमार के साथ और बड़ी बड़ी राइफल्स। मेरे हवास काम करना बंद कर गए। मुझे दहशतगर्द करार दे दिया गया और एक अंडरग्राउंड तहखाने में डाल दिया गया जहाँ एक और सऊदी कैदी मिनहाज इजहाक कैद था। तब हम दोनों वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए थे और तब से साथ हैं। अदीन और डेविड तो समझे कि मैं वहीं उसी कैद में मर गया मगर मैं जिंदा हूँ। डी का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो चुका था। सांस भी मामूल से तेज चल रही थी। ईगल उसकी दास्तान सुनकर सुन हो चुका था। तुम वहां से फरार कैसे हुआ? ईगल ने बहुत देर बाद सवाल किया। भारत का सबसे बड़ा डॉन था वो जिसने मुझे और एम आज को रिहाई दिलवाई। उसमें पाकिस्तान की गद्दार पुलिस ने हमारी बड़ी मदद की। डीक ने सर्द आ भरे। ऐसा लगता था जैसे वो फिर से माजी में पहुंच गया हो। पाकिस्तान का पुलिस ऐसा तो नहीं है, बड़ा सख्त है भाई। ईगल को एतराज़ हुआ। हाँ हाँ, ये जो ट्रक खड़े हैं ना बाहर, इनको पहुंचाने वाला भी एक पुलिस वाला ही है, बल्कि एएसपी आहिल है। 2.5 साल मेहनत की मगर कमाई से दाढ़ भी गीली ना हुई तो सारा ईमान एक तरफ रख कर फ़ौरन पैसा जेब में ठूंसा और शुरू जी हजूरी। डीक नखुवत से बोला। सर, मुलाजिम लड़के ने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। डीक ने इशारे से उसे जाने का कहा।
چلو تمہارا مال تیار ہو گیا ہے، افسردہ کرنے کو معذرت یار، اور رات کو آنا، ڈنر اکٹھے کریں گے، ڈیک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، افسردہ کیسا؟ ہم کو تو اچھا لگا کہ تم نے ہمیں اپنا دوست سمجھا۔ ایگل کے کہنے پر ڈیک نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا دیا۔ تمہارے آنے سے کافی کام درست جا رہے ہیں اور میں ایم آز کے وحشیانہ پن سے کافی حد تک محفوظ ہو چکا ہوں۔ ڈیک کے لہجے میں تشکر جھلک رہا تھا۔ ایگل بھی مسکرا دیا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے وعدے اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک جو بھروسہ کر سکے، دوسرا جو اسے سمجھ سکے۔ خلا من کا طرفی و امتلا من کا خاطری، کان کا من عینی نقل تا علی قلبی۔ وہی سحر انگیز لہجہ، گھمبیر آواز، اس کا تنفس تیز ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی؟ دل فریب مسکراہٹ، جان لیوا انداز۔ اس کو اپنے چہرے پر دو انگلیوں کا لمس سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی تپش تھی اس لمس میں، وہ سوتے میں بھی کسمسانے لگی۔ جب بھی نظر سے دور ہوئے، دھیان میں میرے آن آ بسے، آنکھ سے چل کر دھیرے دھیرے منزل دل تک آ پہنچے۔ آواز کچھ اور قریب سے آنے لگی، فاصلہ سمٹنے لگا، سماعت پھٹنے لگی، کوئی اس سے جھگڑنے لگا تھا۔ وہ رات کے تیسرے پہر پھر جاگ گئی تھی، پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، ننھا سا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب ہونے لگا، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اف گڑیا، کب تک خواب دیکھ دیکھ کر ڈرو گی؟ اب بڑی ہو جاؤ، ہر خواب دیکھ کر چیخ مارنا تو گویا فرض ہے تم پر۔ سائیکا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ابھی چند منٹ قبل ہی تو مطالعہ کر کے لیٹی تھی وہ کہ اس کی چیخ سے جاگ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرے پر سے پسینہ صاف کرتے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور آہستہ آہستہ پینے لگی اور سوچنے لگی کہ خواب میں کیا دیکھا تھا، مگر بہت سوچنے پر بھی کچھ یاد نہ آیا سوائے ان چند مختلف زبان میں بولے جملوں کے۔ گڑیا سو جاؤ یار، مجھے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، کچھ کام ہے۔ سائیکا بڑبڑائی، لائبریری جانا ہوگا، کام کی کچھ لگتی، وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی۔ اسے لگا ابھی چند منٹ ہی ہوئے ہیں، مگر گھڑی پر نظر پڑی تو وہ 8 کے ہندسے پر کھڑی صبح بخیر کہہ رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اٹھنے کی وجہ تلاش کی تو پاس پڑے سیل فون کی جانب توجہ گئی، جو اب بھی مسلسل بج رہا تھا۔ 7-8 میسیجز میں پک اپ دی کال کا پیغام تھا۔ کال پھر آنے لگی، کچھ سوچ کر اس نے یس کا بٹن پش کیا تھا۔ میری جان، ابھی تک سو رہی ہو؟ میری نیندیں اڑا کر خود تم کیسے اتنی میٹھی اور پرسکون نیند سو سکتی ہو؟ بہت ہی کوئی چھچورا انداز تھا مقابل کا۔ نیلم کا رواں جل اٹھا۔ کون ہو اور اس بکواس کی وجہ؟ وہ تڑک کر بولی، تمہاری جان، میری شہزادی، اور یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پوری رات تمہاری تصاویر دیکھتے گزر جاتی ہے اور تم ہو کہ مسلسل بے نیاز ہو، لہجے میں مصنوعی غم سموتے کہا گیا۔ شٹ اپ، ہماری تصاویر تمہارے پاس؟ ناممکن، اور شرافت سے بتاؤ کون ہو؟ او اویس یا حمزہ میں سے کوئی ہو تو جان لو اب اکیڈمی نہیں آؤں گی۔ اب اپنی دال کہیں اور جا کر گلاؤ۔ ساتھ ہی اسے 2-3 گالیوں سے بھی نواز ڈالا، پہلے ہی ان کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھا چکی تھی۔ کم آن بیبی، کم از کم میری آواز تو پہچان لو۔ بہت ہی ڈھیٹ واقع ہوا تھا وہ۔ دفعہ ہو جہنم میں جاؤ، بلاک کر رہی ہوں تمہارا نمبر، وہ سخت غصے میں بولی۔ شوق سے کرو میری جان، مگر پہلے جو تصاویر بھیج رہا ہوں وہ تو دیکھ لو، اور ہاں اگر چاہتی ہو کہ یہ تصاویر پوسٹرز کی صورت میں شہر میں نہ لگیں تو فوراً چوکنڈی کے قبرستان پہنچو۔ فون کی دوسری سمت سے روبدار آواز میں صاف دھمکایا گیا تھا۔ ہماری جوتی آتی ہے قبرستان، کمینے ذلیل انسان۔ وہ تو آپے سے ہی باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میری جان، اتنا غصہ تو نہ کرو۔ اس کے ڈھیٹ پن پر نیلم نے جل کوڑ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر موبائل کی میسج ٹون بجنے لگی۔ اس نے آنے والی میسیجز چیک کیے تو چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، ہاتھ سرد پڑ گئے اور وہ خود کپ کپانے لگی۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سانس کی نالی میں کپڑا پھنسا دیا ہو۔ عجیب و غریب اور ریاں لباس میں ملبوس نیلم کی پوز بھی نہایت واہیات تھے۔ اس بار میکانکی انداز میں اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ مجھے پتا ہے تمہاری کیا حالت ہے، ان پکچرز کو دیکھ کر میری فوٹوگرافی پر شک تو نہیں کرو گی نا تم؟ ہاں تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ نیلم کی آواز کہیں دور کہیں کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ فی الحال تو تمہیں چاہتا ہوں میری جان، پھر آ رہی ہو؟ کتنا چہکتا لہجہ تھا اس کا، سرشار، جیت کے نشے سے چور۔ مجھے اس جگہ کا پتہ نہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مطلب منع کر رہی ہو؟ سخت انداز تھا۔ نہیں تو وہ گھبرا گئی۔
वेल डन, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग डियर। और एक बात, अगर किसी और को इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो ये बंदा जान से जाएगा, जिसकी तस्वीर अब मैं भेजूंगा, तेज आवाज में कहते साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। इस बार आने वाली 2-3 तस्वीरें अबरार साहब की थीं। उन्हें एक कुर्सी पर रस्सियों के साथ बांध रखा था और मुंह पर थैला चढ़ा रखा था। उसकी जान पर बन गई। बाबा, बाबा, उसकी सिसकियां अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगी। मुंह पर हाथ रखे वो न जाने कितनी देर घुट घुट कर रोती रही। साइका कॉलेज गई थी, दादो नीचे थी। उसे जाना था। वो गिरती पड़ती उठी, मुनासिब लिबास पहना और पहली बार अपनी मर्जी से स्याह चादर ओढ़ कर कमरे का दरवाजा मुकफ्फिल करती नीचे चली आई। ए नीलम, किधर? नीलम, ओ नीलम, किधर जा रही है? दादो की आवाजें उसे अपनी पुश्त पर साफ सुनाई दे रही थी, मगर वो सुनी अनसुनी करती निकल गई। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। अब तो सूरज भी खड़ा खड़ा थक चुका था, झुकने लगा था। आधा आसमान नीला हो चुका था। शाम होने को थी। ना ही नीलम आई थी, ना ही अबरार साहब। दोनों के मोबाइल भी बंद जा रहे थे। नीलम तो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर जा चुकी थी। दादो, आप आहिल को कॉल करें, उसे कहें जल्दी आए। साइका ने आंसू साफ करते परेशान होती दादो के कंधे पर हाथ रखते कहा, अरे मेरी मत मारी गई है, पहले क्यों ख्याल आया? आहिल को कॉल मिला। दादो ने अपने माथे पर हाथ मारते कहा, ये ले दादो। साइका ने सेलफोन बढ़ाते कहा। हाईवे पर मौजूद मौजूद पुलिस एएसपी आहिल इसरार को वहां देखकर कुछ हैरान थी, मगर वो वहां की चेकिंग करता, ऑर्डर देता, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। उसका अचानक हाईवे पर आना हाईवे पुलिस के लिए खटके की बात थी। सर, ट्रक में फल ही हैं। ठीक है, जाने दो, आहिल ने मगरूर अंदाज में जवाब दिया। टिन 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 रिंग टोन की आवाज पर घड़ी पर वक्त देखता आहिल चौंक गया। 5:30 हो रहे थे। 5:40 तक वो 3 ट्रक यहाँ से गुजरने थे। क्या? दादो, मैं अभी पहुंचता हूँ, आप फिक्र ना करें। नीलम कहाँ जा सकती है? उसकी सहेलियों के घर पता करें। आहिल सब भूल भाल गया था। याद था तो सिर्फ इतना कि उसकी मंगेतर कजन महबूबा वो घर पर नहीं है, वो कहीं चली गई है। आहिल को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। कब वो पुलिस जीप में बैठा और रवाना हो गया, किसी को कानो कान खबर ना हुई, मगर थी ठीक 5 मिनट बाद वो 3 ट्रक हाईवे की हदूद में दाखिल हो चुके थे। कराची के मशरिक में 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़ चौकंडी का कब्रिस्तान नेशनल हाईवे N5 से गुजरने वाले अफराद की तवज्जो बआसानी अपनी जानिब खींच लेता है। सदियों पुरानी इस तहजीब की आखिरी आरामगाह को देखने के लिए वो यहाँ का रुख करने पर मजबूर हो जाते हैं। 2 किलोमीटर के रकबे पर बसे इस शहर खामोशां का शुमार सिंध के तारीखी विरसों में होता है। यहाँ मौजूद ज़्यादातर कब्रों की तामीर 15वीं सदी ईस्वी से लेकर 18वीं सदी ईस्वी तक होती रही। लफ्ज़ चौकंडी के हवाले से अक्सर का कहना है कि इस मकाम पर जाम मुराद बिन हाजी के नाम से एक मकबरा है, जिस पर लफ्ज़ चौकंडी दर्ज है। इस वजह से चंद माहिरीन का कहना है कि ये जगह का नाम है, जबकि कुछ माहिरीन उसकी वजाहत आर्किटेक्चर के तौर पर भी करते हैं। सिंधी में चौकंडी 4 के मायने में भी आता है, और देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर कब्रें 4 पिलर्स की सूरत तामीर की गई हैं। यहाँ नक्शो निगार से मुज़य्यन तकरीबन 600 कब्रें हैं, जबकि सादा की तादाद 1200 के करीब है। यहाँ पर ज़्यादा दीदा ज़ेब कब्रें वो हैं जो तवातुर मंजिला बनी हुई हैं। ये तकरीबन 2.5 फुट चौड़ी, 5 से 8 फुट तक लंबी और 4 से 14 फुट तक ऊंची हैं। उनकी तामीर में पीले रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जो ज़्यादातर ठट्ठा के करीब जंग शाही से मिलता है। नीलम हद दर्जा परेशानी में भी इस कब्रिस्तान की तज़य्युन व आराइश देख कर रह गई। यहाँ मौजूद कब्रों पर तख्तियाँ नहीं थीं, बल्कि मर्दों की कब्रें घुड़सवार सुरमाओं और असलहे से मुनक्किश थीं, जबकि औरतों की ज़ेवरात से। शाम के साय पर फैलाने को बेताब सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़्ब करने को बेकरार थे। एक लंबी मुसाफत तय करके अब वो मतलूबा जगह पहुंची थी। पूरे कब्रिस्तान का जायज़ा लेते तो वो ना घबराई, मगर जब ये जायज़ा मुकम्मल हो गया तो बेचैनी सवार होने लगी। यहाँ वास्तव में एक कब्र छतरी की शक्ल में थी, लेकिन नीलम उसके काफ़ी करीब खड़ी थी, मतलब तकरीबन कब्रिस्तान के वस्त में पहुंच चुकी थी, शाम होने के करीब थी। अमूमन इस आसार कदीमा के काबिल दीद असासे को देखने लोग दोपहर में आते थे, मगर अब तो नेशनल हाईवे के मुसाफिर भी गुजरते चले जा रहे थे। ना कोई चरिंद न परिंद। स्याह चादर जिसके किनारे पर मैरून पट्टियां लगी थीं, उस पर नीलम की गिरफ्त मजबूत होती चली जा रही थी। 25 मिनट गुजर चुके थे। उसे लगा खौफ के मारे उसकी सांस बंद हो जाएगी। करीब था कि वो रो देती। एक पिलर के पीछे छुपी 2 आंखें मुसलसल उसके चेहरे के उतार चढ़ाव मुलाहिजा कर रही थीं। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ?
कौन सी खता हो गई जो ये इम्तिहान मेरे नसीब में लिख दिया गया। रब कायनात से एक आम बशर की तरह उसके शिकवे शिकायत भी जारी हो गए थे। वो सेल फोन भी घर छोड़ आई थी। अजीब बेबसी ही बेबसी थी। इसी छतरी नुमा कब्र की 2-3 इंच ऊंची सतह के किनारे बैठी बेबस लड़की की सब आंखें झलक पड़ी थी। धुंधलाए मंजर को साफ करने के लिए उसने मैदे से सी रंगत के नाजुक हाथों से आंखें रगड़ी थीं। जब नजर से बूटों पर पड़ी, उसमें इतनी सक्कत ना थी कि आंख उठाकर भी देखती। उसके गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। कदमों की चाप करीब आने लगी, यहाँ तक कि वो उससे 3-4 इंच के फासले पर ठहर गया। आरज़ों पर झुकी घनी पलकों की बाढ़ लरजते कांपती उठी थी। सूरज डूबने के करीब था और ऐसा लगता था जैसे सूरज इस शख्स की पुष्ट पर छुप चुका हो। तभी उसके चेहरे की जानिब उठती नीलम की निगाह सूरज की किरणों की ताब न लाते झुक गई। वो उसका चेहरा नहीं देख सकी थी। स्याह जीन्स बहुत टाइट थी और स्याह रंग की ही शर्ट जिसके ऊपर लेदर का चमड़ा लगा था और दोनों शानों पर स्याह मोटी चादर कुछ इस तरह डाल रखी थी कि वो पूरी बैग को कवर कर रही थी। नाव के नीचे गन बेल्ट पहन रखा था जिसमें छोटा सा रिवॉल्वर झांक रहा था। वो रोबोट की तरह सीधा खड़ा था। दोनों कदमों के दरमियान 2 बालिश का फासला था। नीलम को उसकी नजरें अपने झुके सर पर साफ महसूस हो रही थीं। नीलम को वो कोई जंगजू लग रहा था। उसका हुलिया भी तो ऐसा था। अचानक उसने झुककर नीलम की शीशे की मानिंद शफाफ कलाई अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ ली। उसने दस्ताने पहन रखे थे। इससे पहले कि वो कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती, वो उसे घसीटता हुआ एक लंबी और चंद मंजिला कब्र के पास ले आया और ज़ोर से उसे नाहमवार सतह पर पटका था। उसके मुंह से सिसकारी सी निकल गई। सेल दो अपना। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। वो एक घुटने को ज़मीन पर टेके और दूसरा खड़ा किए उसके पास ही नीचे बैठ गया। जो अभी तक अपने छिले हाथों पर होती जलन पर आंसू बहा रही थी। वो कभी इतनी बुज़दिल न रही थी, मगर आज हालात के पेश नज़र वो खामोश कठपुतली बन चुकी थी। घर पर है, उसने सर झुकाए हकलाते हुए कहा। तुम्हें कहा था ना कि कोई होशियारी मत दिखाना। समझ नहीं आई थी मेरी बात? वो शेर जैसी धार से पूछ रहा था। नीलम खौफ के मारे कब्र से जा लगी, जिसकी नक्शो निगार से मुज़य्यन जाली उसकी कमर पर चुभने लगी। हमने जानबूझकर नहीं छोड़ा, हम भूल गए थे। उसने चेहरा उठाकर जवाब दिया था। मुकाबिल के चेहरे पर अरबी रुमाल बंधा था जो स्याह और सफ़ेद रंग का था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, बहुत ज़्यादा नशीली हल्के भूरे रंग की। इतनी चमक थी, इतनी अजीब चमक थी उनमें कि नीलम को उलझन होने लगी उन्हें देखकर। तुम्हें ये भूल बहुत महंगी पड़ेगी मेरी जान, उसने नीलम को बाजू से दबोच कर करीब करते कारदार लहजे में कहा था। नीलम को अपने बाजू की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। मुकाबिल की निगाह उसके आर्जों पर बहती शफाफ पानी की नदी पर ठहर गई, मगर गिरफ्त ढीली ना की। ऐसा मत कहो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? वो चीख पड़ी, साथ ही जोर लगाकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी। मत भूलो वो तस्वीर अब भी मेरे पास है और तुम्हारे बाबा भी अभी तक मेरे मेहमान खाने की जीनत बने हुए हैं। और उसके सर्द लहजे पर वो कपकपा कर रह गई। बेबसी के मारे आंसू बह निकले। ये लो और एएसपी आहिल को बताओ तुम कहाँ हो। उसने एक स्मार्टफोन नीलम की जानी बढ़ाया। हमें नंबर नहीं याद, वो उलझती हुई बोली थी। अपने मंगेतर का नंबर नहीं याद? एक बार फिर बाजू से खींचते तंजिया लहजे में पूछा गया। वो रो दी। हमें नहीं याद, हम सच कह रहे हैं। उसकी बात पर मुकाबिल ने एक झटके से उसको अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद किया। वो पीछे की जानिब खिसक चुकी थी। लो और बताओ। वो नंबर डायल कर चुका था। नीलम को इस खेल की कुछ समझ ना आई। आहिल, हम चौकंडी के कब्रिस्तान पर हैं, खुदारा जल्दी आ जाए, हमें ले जाए यहाँ से। वो रोते हुए फरियाद कुनाल लहजे में बोली। फोन उसके हाथ से बेदर्दी से झपट लिया गया। देखो यार, मुझे निकलवाना था अपना काम और वो हो गया है तकरीबन मुकम्मल। मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तुम थोड़ा ताउन करो तो नुकसान से बच जाओगी। वो भला की नरमी से बात कर रहा था, फिर अचानक गन बेल्ट से रिवॉल्वर निकाला और उसकी मोजल के गिर्द उंगलियां फेरने लगा। अपने बाप की खैरियत चाहती हो? नीलम ने के घबराए चेहरे पर नजर दौड़ाई। उसे जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। साथ ही बेबसी से सुर्खी माइल गुदास लबों से निकलती सिसकी को बमुश्किल रोका था। और चाहती हो कि तुम्हारी तस्वीर जाया कर दी जाए? उसकी बात पर नीलम ने तड़प कर सर को हाँ में जुम्बिश दी थी। तो फिर एक काम करो, उसने नीलम की सवालिया निगाहों की जानिब देखते कहा। क्या? वो बेसब्री से बोली। भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था और किस धमकी पर बुलाया था। और हाँ, ये भी कि तुम यहाँ किससे मिली थी और क्या बात हुई थी। सब भूलना पड़ेगा, मंजूर है? हाँ हाँ, हम भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, वो जल्दी से अटकते हुए कह रही थी। वेल डन। तो नीलम अबरार, आज तुम शौकिया ये कब्रिस्तान देखने आई थी और अब रात होने के बायस डर गई हो। तभी एक राह चलती मुसाफिर से दरख्वास्त करके तुमने फ़ोन लिया और अपने मंगेतर को कॉल करके बुलवा लिया। दैट्स इट। उसने बात पूरी करते नीलम की हैरान नज़रों की जानिब देखा। भूलोगी तो नहीं कि तुमने क्या कहना है घर जाकर? वो सर्द लहजे में बोला तो नीलम कपकपा गई।
ہم یہی کہیں گے، وہ یقین دہانی کرانے لگی۔ مگر پھر بھی مجھے دغابازی کی سزا کے لیے وہ تصاویر اپنے پاس محفوظ رکھنی پڑیں گی۔ سوری جانا۔ اس نے نیلم کی ڈھلکی چادر سے جھانکتی شہد رنگ زلفوں کو دیکھا۔ نیلم بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نیلم کی طرف بڑھے تھے، وہ پیچھے کو کھسکنے لگی تھی جب اس نے وہ سیاہ چادر اس کے سر پر جما دی۔ عجیب عمل تھا۔ نیلم نے بے اختیار اس کی نشیلی بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں ایک جمود ستاری تھا، ان میں کوئی ہلچل نہ تھی۔ ساکت نگاہیں۔ پھر وہ اٹھا اور پلٹ گیا۔ اس کے پلٹنے سے کندھوں پر پھیلی سیاہ چادر ہلی تھی اور پشت پر مزید پھیل گئی تھی۔ عجیب حلیہ تھا اس کا۔ وہ سیدھ میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اونچی اونچی قبروں میں وہ کہاں گم ہو گیا، نیلم جان ہی نہ سکی۔ آہل ریش ڈرائیونگ کرتا ابرار ہاؤس پہنچا تھا، جہاں سائقہ اور دادو کی سانس تک رکی ہوئی تھی۔ دونوں کے پریشان چہرے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر گئے۔ اس نے اور سائقہ نے مل کر نیلم کی تمام دوستوں کو کالز کی، چند کے گھر بھی پتہ کیا، ابرار صاحب کا محلے میں پتہ کیا، مگر دونوں نفوس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب نیلم کی کال آئی۔ اس کی نم آواز التجا کرتی، وہ آواز آہل اسرار کی تڑپ میں 10 گنا اضافہ کر چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر جیپ لے کر نکل گیا تھا۔ دادو اور سائقہ کو تسلیاں دیتا وہ جا چکا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل چیخ رہا تھا، ڈیک کالنگ، مگر اس کے دماغ میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بس اسے جانا تھا، وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ کیسے اس کی نم آواز سے کان لپیٹ سکتا تھا؟ ہر انسان کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، اور اس نے تو برائی کی راہ بھی اس کے لیے چنی تھی۔ اسے زندگی کی ہر آسائش فراہم کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے وہ کس دلدل میں پھنس گیا تھا، اسے احساس نہ تھا۔ ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو۔ اے ایس پی آہل پک اپ دی فون باسٹرڈ ڈیک جلے پیر کی بلی کی طرح ڈرائنگ روم میں چکر لگاتا، بار بار ایک ہی نمبر ڈائل کرتا، اسے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ قومی شاہراہ N25 صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر 3 ٹرک اسلحے سے لیس ہائی وے پولیس نے پکڑ لیے اور ان ٹرکوں کے ڈرائیورز بھی گرفتار۔ ان میں شیر دل نامی ایک نوجوان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ باقی تفصیلات جاننے کے لیے انتظار کیجیے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ نیوز اینکر نے 2-3 بار یہ بریکنگ نیوز چلانے کے بعد بریک لے لیا تھا۔ اے ایس پی آہل اسرار، تم نے اچھا نہیں کیا، تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تمہاری سزا، تمہاری دردناک موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ منہاج الزحاق نے ایشٹرے پوری قوت سے دیوار گیر LED میں دے ماری۔ میرے ساتھ دھوکہ؟ منہاج الزحاق کے ساتھ؟ اس شخص نے ایک پلر کی اوٹ میں ہو کر دیکھا، وہ ابھی تک وہاں بیٹھی گریہ ازاری میں مصروف تھی۔ دونوں گھٹنے جوڑے ان پر سر ٹکائے۔ ہو گیا کام، ہو گیا کام، کان کو فون لگائے، وہ بہت مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا جب وہ اطمینان سے بولا، ویل ڈن۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے اس نے سیل کا بیک کور کھولا، سم نکالی اور 3-4 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینکتے اس پر اپنے بوٹ مسل دیے۔ اے ایس پی آہل چوکنڈی کے قبرستان کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی بے قرار آواز صرف نیلم نیلم پکار رہی تھی۔ کیا تڑپ تھی اس آواز میں۔ عربی رومال لپیٹے چہرے کو ڈھکے اس شخص کے ہونٹ تلخی سے مسکرائے تھے۔ آہل آہل، وہ لڑکی بھی چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر اونچی اونچی قبروں کے آر پار گھومتے دونوں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شخص نے سرد آہ خارج کرتے ریوالور لوڈ کیا۔ آہل، نیلم کی جانب اس کی پشت تھی۔ آخر اس نے آہل کو ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ 4-5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا وہ اس کی آواز پر یکدم پلٹا تھا۔ بھاگنے اور آواز لگانے سے اس کی حالت دگرگوں ہو گئی تھی۔ ہاں، چادر کا ایک سرا کندھے پر ٹکا، باقی ساری چادر زمین کو چھو رہی تھی۔ شہد آگیں ریشم کی زلفیں بکھر چکی تھیں۔ اے ایس پی آہل تڑپ کر اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس کی پشت پر سیاہ جنگجو لباس زیب تن کیے اس شخص نے ریوالور نشانے پر ٹکا دیا۔ ٹھا! فضا کو چیرتی دلخراش آواز نے ماحول کے سکوت میں پل بھر کو ارتعاش پیدا کیا تھا۔ سنسناتی ہوئی ہوا اب تھم چکی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں بے یقینی سے حد سے زیادہ پھیل چکی تھیں۔ آنسو بے اختیار ہو چلے تھے، ڈھلک ڈھلک کر ٹھوڑی سے نیچے گرتے وہ بے قدرے ہونے لگے۔ چادر کا آخری سرا بھی زمین کا بوسہ لیتے اسے بے پردہ کر گیا۔ آہل! اس کی چیخ فائر کی آواز سے بھی زیادہ دلخراش تھی۔ آہل! گولی اس کی دائیں پنڈلی پر لگی تھی۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہو چکا تھا۔ اندھیرا اس کی آنکھوں کے آگے چھانے لگا۔ وہ واقعی ایک کمزور اور کم ہمت شخص تھا۔ ایک پولیس آفیسر کا ایک گولی پر ڈھیر ہونا تعجب کی بات تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، گولی ہم نکال چکے ہیں، کچھ وقت درکار ہوگا انہیں پھر سے اپنے قدموں پر چلنے کو۔ ڈاکٹر نے اسرار صاحب کے پریشان چہرے کی جانب دیکھ کر مختصراً کہا۔ کتنا وقت ڈاکٹر؟ پلیز اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو ابھی بتا دیں۔ اسرار صاحب کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔
कॉरिडोर में तो खड़े तमाम अफराद दादो, नीलम, अबरार साहब, आलिया, रियान, डॉक्टर और इसरार साहब की जानिब मुतवज्जे थे। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। गोली गोश्त में लगी थी। मोड़ने की वजह से हड्डी मुतासिर नहीं हुई। आपको शुक्र अदा करना चाहिए। इस बार डॉक्टर पेशा वराना मुस्कुराहट से नवासा निकल गया। या इलाही, तेरा तेरा शुक्र। आलिया बेगम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए बुलंद आवाज में कहा था। सबके चेहरों पर मौजूद परेशानी काफी हद तक कम हो चुकी थी। चूंकि पुलिस केस था तो एसपी वहाज आए थे। पहले तो आहिल के हाईवे जाने पर बस पुरस की गई। सर, मुझे इत्तला मिली थी कि N25 से शाम के वक्त असलहे से लेस ट्रक गुजरने वाले हैं, तब मैं वहां गया था और मुझे लगता है कि मैं सोची समझी साजिश का शिकार हुआ हूँ। आहिल ने हमवार लहजे में बात मुकम्मल की। आपको हाईवे पुलिस की ड्यूटी पर शक था क्या? एसपी का लहजा कारदार था। नो सर। आहिल का सर झुक गया। उसको रूम में शिफ्ट किया गया था, वहीं पूछगिछ जारी थी। फिर बगैर इत्तला के जाने की वजह? सॉरी सर, वो शर्मिंदगी से बोला। मिस नीलम अबरार को लाओ। एसपी वहाज ने हवालदार को हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद नीलम घबराती, हाथ मसलती अंदर दाखिल हुई। झूठ बोलना उसके लिए एक मुश्किल मरहला था। एसपी वहाज की नजरें हुस्न के पैकर पर जम सी गईं। जब वो इतनी बिखरी हालत में भी इतनी पुरकशिश लग सकती थी तो सिंघार में तो क़यामत की अदा लगनी थी। एसपी वहाज की नजरें नीलम पर महसूस करके आहिल ने जब्त की कड़ी मंजिलें तय की थीं। आइए मिस नीलम। एसपी वहाज ने उसे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया। आयोग के नीलम को जिस बुझ होते देखकर एसपी वहाज ने गहरी निगाहों से तकते कहा। वो उस बात में सर हिला गई। आपने एएसपी आहिल को ही क्यों बुलाया, अपने वालिद को क्यों नहीं? एसपी वहाज के सवाल पर नीलम गड़बड़ा गई। वो बाबा इस टाइम सेंटर में होते हैं, तभी। क्या आपने फायर करने वाले शख्स को देखा था? एसपी वहाज के सवाल पर झप करके एक शबी नीलम अबरार के सब्ज कांच में समाई थी। हो ना हो हमला उसी जंगजू ने किया है। मगर वो तो जा चुका था। वो अपने दिमाग से उलझ रही थी जब एसपी वहाज की आवाज़ ने उसे वापस हाल में खींचा। नहीं, हमने किसी को नहीं देखा था। जब आहिल को गोली लगी तो हमें तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, और फिर जब थोड़े हवास ठिकाने आए तो इनके सेल फोन से ही जो पहला नंबर नजर आया उसी पर राब्ता कर लिया। फिर पुलिस के चंद अफराद ही हमारे साथ उन्हें हॉस्पिटल लाए थे। इस बार वो तफसील से कह गई। एसपी वहाज ने 2-3 बेतुके सवाल करते उसे नजरों की जद में रखा और फिर आहिल के सुर्ख होते चेहरे की तरफ देखते गेट वेल सून कहकर चले गए। अबरार साहब अंदर दाखिल हुए। बाबा, आप कहाँ गए थे? दोपहर में घर क्यों नहीं आए थे? अब जब मौका मिला था तो वो सवाल कर गई। चुप कर जा तू, सब तेरी वजह से हुआ है। किसने कहा था तुझे सैर सपाटे करने को निकल, वो भी कराची के आखिरी कोने पर? दादू अंदर आती गुस्से से बोली। नीलम बेटा, आपने अच्छा नहीं किया। अबरार साहब शिकस्ता लहजे में बोले। सॉरी बाबा, आपकी गुड़िया आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगी। वो सोफे से उठकर राहिल के बेड के किनारे पर खड़े अबरार साहब के शाने से लग गई। उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि कॉलेज से निकलते उन्हें क्लोरोफॉर्म से भीगे रुमाल की मदद से बेहोश करके जाने कहाँ ले जाया गया था और शाम 6 बजे के करीब घर से कुछ दूर सुनसान सड़क पर उतार दिया था। इसरार साहब, आलिया बेगम, रियान, सबका रवैया नीलम के साथ निहायत अजनबी सा था। वो सब नीलम को इस वाकया का कसूरवार गिरदान रहे थे।